Yes, good morning everyone. This is our next module. We are discussing back exercise question answers of chapter motion. This is our question number 4. A motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. A motorboat starting from rest. Starting from rest means initial velocity is 0 and acceleration is given as 3 meter per second square. How far does the boat travel during this time? Far means this is talking about distance. Okay, in this time, see the time is given for 8 second. Okay, so time is 8 second. We have to find s. We have two equation of motion including which is containing s is equal to ut plus half at square v square minus u square is equal to 2as. Okay, we have to find f's. Suppose we have to find s from this equation. So we have value of u, yes. We have value of a, yes. But we have value of v, no. So this is not accurate. Now we will apply this. S is equal to ut plus half at square. We have u, yes. T, yes. A, yes. So सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है s. We can find it, yes, obviously. So apply s is equal to ut plus half at square. U is 0. If u is 0, the whole value will be 0 plus half a t square. So this is the value. By multiplying this, we will get 96 meter. This is the answer. Now move towards question number 5. A driver of car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stop in 5 seconds. एक ड्राइवर है, कार में ट्रैवलिंग कर रहा है, उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर. वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है और 5 सेकंड के बाद कार स्टॉप हो जाती है. दूसरा ड्राइवर है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. वो भी क्या करता है, कार में ब्रेक अप्लाई करता है और कार 10 सेकंड में स्टॉप कर जाती है. ठीक है, एक ग्राफ पेपर हमें दिखाना है स्पीड वर्सेस टाइम का. ये स्पीड है और ये टाइम है. ये ग्राफ दिखाना है दोनों कार के लिए और ये बताना है कि दोनों कार में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कौन करता है. मतलब जैसे कार ए है, कार बी है, इसने ब्रेक लगाई, इसने ब्रेक लगाई, तो दोनों में से ब्रेक लगाने से, जिस टाइम पर ब्रेक लगाई उसके बाद से रुकने तक किसने ज़्यादा टाइम, किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ है. स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फर्स्ट कार के लिए. फर्स्ट कार के लिए हमने एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन स्पीड मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. सो फाइनल स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ रहा है. सो फाइनल स्पीड इज 0 माइनस इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड इज 52 किलोमीटर पर आवर बट वी आर नॉट टेकिंग इट इन किलोमीटर पर आवर. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट 52 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. ओके, सो 52 इंटू 5 अपॉन 18 एंड इट विल कम आउट 14.4 मीटर पर सेकेंड. सो फाइनल स्पीड is 0, initial is 14.4 upon time taken is how much time it is taking, 5 second. It is taking 5 second and the value will be 2.88 meter per second square. But remember the largest number is containing negative sign, so this is negative. What is this negative sign indicating? This is indicating that acceleration is going down. Acceleration is, the value of acceleration is decreasing. This is retardation. Now we will calculate for our second car. Second car, final value obviously 0, it is also coming in rest. Initial value 34 kilometer per hour. So 34 into 5 upon 18, 9.4 meter per second. Okay, so 9.4 upon the total time it is taking 10 second. So this is what, minus 0.94 meter per second square. Okay, so let me draw the diagram including speed time graph. See, from this we can calculate in our first case में हमारा क्या था,
एक्सेलरेशन -2.88 आ रही थी स्पीड, और टाइम, स्पीड हमारी कितनी थी, स्पीड हमारी थी 14.4 और हमारा टाइम कितना था 5 सेकेंड। सेकेंड स्पीड थी हमारी 9.4 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 10 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है। देखो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है अंडर द कर्व, जैसे फॉर फर्स्ट कार एरिया अंडर द कर्व इज दिस AOB, ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। एंड फॉर सेकेंड कार DCO, ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार। ओके, सो वी विल कैलकुलेट इट। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ हो गया, बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू देखते हैं। बेस है टाइम और बेस की वैल्यू है 5, हाइट है 10, स्पीड एंड इसकी वैल्यू है 14.4। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 5 इंटू 14.4। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 36 मीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार S2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि वो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। उसकी वैल्यूज हम देख लेते हैं। देखिए बेस की वैल्यू है ये 10 सेकेंड और हाइट की वैल्यू है 9.4। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू 10 इंटू 9.4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 47 मीटर। तो अब ये देखिए कौन सी कार है जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। द कार सेकेंड 47 मीटर, दिस इज ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस। So this was our numerical. So we will move towards next question, question number 6. See, our question number 6 is, in question number 6 we have given a graph and the graph is this. Okay, this is the graph traveled by A, this is the line. This is the line traveled by B and this is the line traveled by C. Okay, this is distance time graph. So distance time graph, what is given? Speed. Okay, the speed of A is represented by this line, speed of B is represented by this line and speed of C is represented by this line. This is the graph given in your book. So the questions are so these are the question. First question is, which of the three is traveling the fastest? सबसे तेज कौन चल रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कि जैसे ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, द स्लोप इज गिविंग स्पीड। ओके, तो जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो जो ए है हमारे पास वो कुछ इस टाइप से है, बी जो है वो हमारे पास ऐसे है और सी जो है वो हमारे पास ऐसे है, ठीक है। लेट मी शो यू, लेट्स सी। ये जो 3 लाइंस हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो स्लोप है वो किसका है, बी का, ठीक है। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा स्पीड भी उसकी सबसे ज़्यादा होगी और वही सबसे फास्टेस्ट मूव करेगा। सो ऑब्जेक्ट वी विल मूव फास्टेस्ट। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या तीनों कभी किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी? सी, जो हमारा ए है वो कहीं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, सी कहीं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी एंड बी कहीं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। सो बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन सी इजीली दैट दीज ऑल 3 कैन नेवर मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए? जब बी ए को क्रॉस कर रही है उस टाइम पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है? जब बी ए को पास कर रही है तो कहाँ पास कर रही है, इस जगह, बी ए को इस जगह पास कर रही है। इस जगह पे डिस्टेंस, डिस्टेंस वाली एक्सिस ये है, इस जगह पे डिस्टेंस क्या है, तो सी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, दिस मच। व्हाट इज द, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 8 एंड 10 के बीच में 9, लेकिन ये क्या है, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट का है, ठीक है। इस टाइम पे सी कहाँ है, यहाँ कहीं, ये दिस इज सी। सो इस टाइम पर सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज 6 एंड 8 के बीच में क्या लाई करेगा, 7। तो सी ने इस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7 किलोमीटर।
So our next question is, how far has B traveled by the time it passes C? B जब C से पास कर रही है तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये B है, B जब C से पास कर रही है, इस पॉइंट पे पास कर रही है, तब B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दिस इज द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ B एंड C, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दिस वन. सो ये 4 है, ये 4.5, ये 5, ये 5.5 और ये 6. सो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दिस वन. दिस वैल्यू इज 4.5. So B crossed F at a distance of 4.5 kilometer from the origin. This is answer number 6, and next question we will discuss in our next module. Thank you.